Greetings from Citizen Health and the Team Academy IFAs and MeConnect. And today, in the series of People's Health It Matters, we have Dr. Suresh Rathi, who is Deputy Director Research associated with Sumandeep Vidyapeeth, Vadodara, and working on climate and health since last 10 years. A very warm welcome to you, sir, on behalf of all the audience. Thank you, Dr. Ritu. Thank you. It's my pleasure to be here on this platform. Pleasure is ours, sir. And today we will talk about the effect of heat or high temperature on our health. Since we are in North India, we all have India is a mix of climate. Now we have heat, we have high temperature, we have low temperature. So today we will talk about the effect of heat and high temperature on our health. So my first question to you, sir, that what are the conditions due to high temperature? Okay, this is a wonderful question. So before this question, I will narrate a one case story. Let's say there's a one person who traveled in the morning, okay, maybe for office hour, he's a factory employee. He traveled around 3-4 hours in the morning for office work, for his factory work. And then he came to the campus, he came to the basically factory, and he told his friends that I'm not feeling well. Okay, so I need some rest. That's what he told his colleagues and friends. So friends said, okay, fine. So he has gone for some nap. थोड़ा सा उसने आराम करना चाहा, ठीक है. So he gone for some nap. Okay. लेकिन 2 घंटे हो गए, वो नींद से नहीं उठा, आराम से नहीं आएगा. After 2 hours, even he was not basically awake. कि क्या हुआ? So when his friends inquired about this, what happened to this guy? Why he's not there in the work? Then people saying he's still sleeping and he's having high fever. So then this person basically they shifted to him to the hospital, nearest hospital. उसको हॉस्पिटल में लेके गए, जो पास में था वहां पे लेके गए उसको. On the checkup, doctor told them that he has a high fever, very high fever, 106 plus. 106 डिग्री था उसको टेम्परेचर, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट उसको टेम्परेचर था. बहुत ज़्यादा फीवर था, उसकी पल्स बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी, ब्लड प्रेशर लो था. ये इनिशियल फाइंडिंग्स थी डॉक्टर की उस टाइम की. और ड्राई स्किन था उसका. तो उन्होंने दे एडमिटेड हिम, उन्होंने उसको एडमिट किया, वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया और शिफ्ट किया उसको डायरेक्टली आईसीयू में. ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई उसकी आईसीयू में. देन दे लेवल्ड हिम दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक. कॉमन लैंग्वेज हम उसको सन स्ट्रोक भी कहते हैं, जिसको अगर हिंदी में एक और वर्ड यूज होता है लू. लू लग गई, गर्मी हो गई, गर्मी ज्यादा लग गई, लू लग गई, ज्यादा बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक हुआ उसको. सो इतना सीवियर है हीट स्ट्रोक. वो 4 दिन आईसीयू में रहा, 4 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई. आप समझ रहे हैं, ये हम लोग कोई नोटिस नहीं करते, इतना सीवियर कंडीशन है हीट स्ट्रोक. हम लोग कॉमनली देखते हैं कि ऐसा हुआ. अब आपका क्वेश्चन था कि हीट से क्या क्या कंडीशन हो सकती है. सो दिस इज द सीवियर, वन ऑफ द सीवियर कंडीशन नोन एज हीट स्ट्रोक. उससे पहले जो बेसिक जो कंडीशन होती है वो हम कहते हैं थकावट हुई. ठीक है, थोड़ा बहुत कहते हैं थकान लगी. ठीक है, वो हीट से, गर्मी से हमें थोड़ा सा थकान हुआ, इस तरह से उसको लगता है बेसिकली. इसको कहते हैं हीट फटीग जो हमें हुआ. उसके बाद आपने सुना होगा गर्मी दाने, एक सुना होगा हीट रैश. सेकंड, उसके बाद की कंडीशन है हीट रैश, ये कंडीशन. उसके बाद में बंदा कभी कभी थोड़ा कोमा फेंट हो जाता है, गिर गया, रास्ते में चलते हुए गिर गया गर्मी की वजह से. एंड फाइनली जो ये हीट स्ट्रोक हुआ, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. सो ये कॉमन कंडीशंस हैं, ये डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं पर्सन को हीट से. अब कुछ ऐसी कंडीशन है जो इनडायरेक्टली अफेक्ट सेम. सो दीज आर द 4-5 कंडीशंस. ओके, हीट फटीग, heat rash, heat syncope, heat exhaustion, and heat stroke. Yeah, these are the common. And after that, after heat stroke, it's a medical emergency. Heat stroke is a medical emergency. और उसके बाद जो है वो डेथ हो जाती है उसकी. If he is not getting the immediate treatment, so उसकी डेथ हो जाती है. Yeah.
अब हीट जो है, टेम्परेचर जो है, हमें और किस तरह से अफेक्ट करता है, ये तो ये हो गया, ये हीट की कंडीशन है। हम जो काम करते हैं, ठीक है, अगर हमें एनवायरमेंट कंडीशन न मिले तो हमारा जो काम करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। वर्क एफिशिएंसी विल बी रिड्यूस्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, हम काम करने की जो क्षमता है हमारी वो कम हो जाती है, काम जो जितना करना होता नहीं कर सकते। एक इनडायरेक्टली है। दूसरा जो है, गर्मी के अंदर, हीट के अंदर ज़्यादा हमारे लंग्स के अंदर, हमारे जो हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर आता है उसको काम करने के लिए। सो मोर प्रेशर, मोर स्ट्रेस ऑन लंग्स एज वेल एज ऑन हार्ट बिकॉज ऑफ हीट, उनको काम करने के लिए। सो वो क्या लीड करता है? अगेन हीट एग्जॉशन की टाइप लीड करता है। तीसरा, ये गर्मी ज़्यादा हो तो जो मेल जो है, मेल फीमेल जो भी, मेल में ज़्यादातर इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, तो ये इस तरह से उसका प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये काम आने, ये चीज़ें थोड़ी से हैं। तीसरा, अगर आपने सिग्नल पे कहीं पे गए हों, सिग्नल आपकी गाड़ी में एसी नहीं है, या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, एसी नहीं है, सिग्नल पे ट्रैफिक जाम हुआ है, तो आपको कितना गर्मी लगेगा। सपोज आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मेरी गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा है, एसी नहीं है, ठीक है, तो हम लोग उस टाइम पे हमारी कंडीशन क्या होगी? गुस्से से भरे पड़े होंगे, पसीना ऐसे से बह रहा होगा, ठीक है, और उस गुस्से के अंदर, उस पसीने के अंदर हम जो है, हमारा जो है बेसिकली हम किसी को मार भी सकते हैं, कुछ किसी को कह भी सकते हैं गलत बात, ठीक है, यानी एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, ठीक है। सो इट क्रिएट्स अनदर वे ऑफ एंगर एंड कंफ्यूजन एंड मे क्रिएट एक्सीडेंट्स आल्सो। ये आप कभी नोट कीजिएगा, सिग्नल पे कहीं पे जाइए, जब ज़्यादा टेम्परेचर 40 के करीब टेम्परेचर हो, आप अपनी सिटी में नोट कीजिएगा, आप गाड़ी का एसी बंद करके 5 मिनट खड़े रहें, ठीक है, तो पता चलेगा कि क्या सिचुएशन होती है। तो ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारे हेल्थ पे। एक डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं जो मैंने बताया, पहले हीट फटीग, दूसरा हीट जो रैश, हीट क्रैम्प्स भी होता है। मैं हीट क्रैम्प्स के बारे में आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमारी जो बड़ी एज की लेडीज़ हैं, स्पेशली घर के अंदर जो हैं, मदर हैं, सिस्टर हैं बड़ी एज की, या वाइफ हैं, जो भी बड़ी एज की हैं, जो भी लेडीज़, वो कॉमनली आपने सुना होगा कि मेरे पाँव में नीचे इस समय जो है वो थोड़ी ताकत नहीं रही, उसमें पेन हो रहा है, ठीक है, मसल क्रैम्प्स जो कहते हैं। और हम लोग कॉमनली ये समझते हैं घर के अंदर कैल्शियम की कमी है। दिस इज routinely we think that there's a deficiency of calcium, and we have gone for the calcium doctor and taking the calcium supplements. बट ये जो होता है, सारे दिन के घर के अंदर जो लेडीज काम करती हैं वो पानी बहुत कम पीती हैं समर सीजन के अंदर। समर में वैसे ही ज़्यादा चाहिए, वैसे कम पीती हैं पानी, और कम, तो ये जो क्रैम्प्स हुए हैं बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन होता है। हम मिसडायग्नोज कर रहे हैं इनको। Are you getting my point? कि ये हीट क्रैम्प्स कहलाते हैं, इतना है, ठीक है। सो हीट क्रैम्प्स, उसके बाद हीट सिंकोप, एग्जॉशन, एंड देन फाइनली सन इज हीट स्ट्रोक एंड देन डेथ। और दूसरा जो मैंने बताया इनडायरेक्टली जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, वो चीज़ें हैं, वर्क एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। रोड पे अगर कहीं पे जा रहे हैं, ट्रैफिक में अगर हैं, तो ये हमारा यानी जो है चांसेस एंकर के ज़्यादा हैं, एक्सीडेंट प्रोन हम ज़्यादा हो जाते हैं, करते हैं, ठीक है। हमारा जो हार्ट के और लंग्स पे प्रेशर ज़्यादा आता है, तो इसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ेगी। सो ये हीट के और इफेक्ट्स हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। ओके, तो इनिशियली सर हमको कैसे पता चले कि हमको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं, या जैसे अब थकावट सी लग रही है, तो क्या हमें तभी अलर्ट हो जाना चाहिए, या और कोई भी सिम्टम्स हैं इसको पहचानने के लिए? और भी सिम्टम्स है जो आपने कहा, ये ठीक है, हमें तो अलर्ट हो जाना चाहिए। उसके लिए मैं पहले ये करूँगा, सिम्टम्स का वेट ही नहीं करें कि ये डायग्नोसिस में क्या चीज़ है। हम लोग जो रूटीन के अंदर जो देखते हैं कि जब डिजीज हो जाए उसके बाद जाते हैं। हमारा काम यहाँ पे प्रिवेंशन साइड पे है कि ये डिजीज होने ही ना दें, ठीक है। लेट्स से मैं आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि कैसे इसको घर के अंदर आइडेंटिफाई किया जाए। लेमन कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, कॉमन मैन कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। एक तो बॉडी का टेम्परेचर 104 से ज़्यादा होना चाहिए, वैसे दूसरी कंडीशन में होता है, लेकिन एक ये भी है 104 से टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फीवर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बुखार होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गई बात। दूसरा, जो डिहाइड्रेशन होना चाहिए उसको,
स्किन जो उसकी ड्राई होनी चाहिए, हम अपने ऐसे भी चेक कर सकते हैं, स्किन हमारी ड्राई होनी चाहिए उसकी, जो बंदे की जो भी है। तीसरा, उसको उसका जो हार्ट जो है ज़्यादा चल रहा हो, जैसे दिल की धड़कन जो कहते हैं ज़्यादा बढ़ी हुई हो, हार्ट रेट जो है यानी 140 150 तक भी जा सकता है, इतना ज़्यादा जा सकता है। और ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर नहीं चेक कर सकते घर पे, तो हार्ट का कहते हैं दिल की धड़कन बढ़ गई है हमारी, तो वो एक ये भी है कि उसको भी देखा जाए कि डिहाइड्रेशन का क्या इफेक्ट है। ठीक है। दूसरा, फिर थोड़ा सा हमें आंखों के अंदर अंधेरा आ जाता है कुछ टाइम के लिए, इट्स ब्लड विजन, थोड़ा सा वो यानी डबल डबल दिखाई दे या कुछ इस तरह से, सारा इफेक्ट जो है डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है हमें। और फिर तो सके थकावट होती है, मुझे नींद आ रही है, मैं वो वहीं पे जाकर था खड़ा था, कोई बंदा वो वहीं पे गिर गया, सो गया, जो भी है, ये कुछ कॉमन्स हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसको जैसे ही कुछ ये हुआ, इमीडिएटली हमें डॉक्टर के पास चला जाना चाहिए, तो फाइनली इसको लेवल करके ट्रीटमेंट दे उसको जो भी है, क्योंकि ये फीवर बाकी भी कंडीशन में हो सकता है ये, ठीक है, इसमें, लेकिन एक ये चीज़ होनी चाहिए। ये तो कॉमन उसके सिम्टम्स हैं जो उसके ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके सर, जैसे आप बता रहे हैं डिहाइड्रेशन की वजह से होता है ये, तो एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि अगर इसको रोकना है तो खूब ढेर सारा पानी पीना चाहिए, और यस, क्या-क्या तरीके हो सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए? वेरी गुड। क्या क्या हो सकता है प्रिवेंट करने के लिए? अब जैसे आपने खुद ही कहा कि पानी ज़्यादा पीना है, हुँ, ठीक है। मैं आप ये देखिए कि ये जो डिजीज़ है, इसका ना कोई ट्रीटमेंट है मेडिकली, मीन्स दवाई कोई नहीं है इसकी इमीडिएटली। डिहाइड्रेशन का मकसद पानी देना चाहिए, ड्रिप्स लगाना चाहिए हॉस्पिटल में, लेकिन ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, ना ही कोई इसकी वैक्सीन है कि ये प्रिवेंट करे हीट स्ट्रोक को। ये हमें खुद ही प्रिवेंट करना है, ठीक है। जो आपने कहा कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो आप कहीं पे भी हो, गर्मी का सीजन है, कहीं पे भी हो आप, ठीक है, एवरी आवर में थोड़ा सा पानी लीते, साथ में लेते रहिए। ड्रिंक वाटर एवरी आवर, हाफ ग्लास 1 ग्लास जितना रिक्वायरमेंट है। कॉमनली हमें ये कहा गया है या बताया जाता है घरों के अंदर बच्चों को बड़ों को कि 8 ग्लास आपको पानी पीना है, 8 ग्लास पर डे, ठीक है, होता है, लेकिन समर के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक सीधा सा यानी क्या कहें, आपको फार्मूला एक बता देता हूँ कि आपको पानी कैसे पीना है। जैसे लेट से कि ये आपने मोबाइल है सबके पास आजकल, मोबाइल के अंदर आपको टेम्परेचर भी बताया जाता है, आता है टेम्परेचर दिखाया, पता है आपको होगा, ठीक है। आप देख लें आज का टेम्परेचर कितना है इसके अंदर और कितना जा सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, ठीक है। तो लेट से कि अभी 38 टेम्परेचर है और आज के रिक्वायरमेंट जो हमने घरों में बताई गई है, चाहे मैं बच्चा हूँ चाहे बड़ा हूँ चाहे कुछ, 8 ग्लास पानी दिन में पीना है। अब 38 पे टेम्परेचर या 37 टेम्परेचर पे हम 8 ग्लास पीते हैं। अब आप एक काम कीजिए, जैसे टेम्परेचर 39 हो गया, आप 1 ग्लास उसके अंदर ऐड कर लीजिए, 8 ग्लास के अंदर 1 ग्लास उसके अंदर ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये आप सीधा सीधा ये कर लीजिए, 1 ग्लास ऐड कर लीजिए आप, बस। जैसे 40 हुआ, एक और गिलास ऐड कर लीजिए, तो आपकी 40 पे 10 गिलास हो गई। अब आपका जो है एक और हो गया, 41 डिग्री हो गया, एक और गिलास ऐड कर लीजिए। 41 पे मुझे 11 से 12 गिलास पानी पीना है, 38 पे मुझे 8 गिलास पीना है। अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो, कहीं गर्मी के अंदर कहीं नहीं जा रहे हो तो, ठीक है। दूसरी बात, ये तो पानी का सीधा। दूसरा बात है 12 बजे से लेके 11 से लेके 12 से लेके 4 बजे तक आप घर से बाहर ना निकलें, ऑफिस से बाहर ना निकलें गर्मी के अंदर। जितनी भी गर्मियों कोई अननेसेसरी काम है, ऐसा कोई अर्जेंट है तो ठीक है जाइए विद प्रिकॉशन, साथ में पानी की बोतल रखिए, ठीक है, अम्ब्रेला यूज कीजिए, कैप यूज कीजिए, उसके बाद में आप बाहर जाइए। पहली बात तो जाना नहीं है इस टाइम के अंदर, अगर इतनी इमरजेंसी है जाना भी है आपको तो ये चीजें साथ में कीजिए, मिनिमम इतना करना है। अम्ब्रेला साथ में रखिए, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, पानी का बॉटल साथ में रखिए, बीच बीच में पानी पीते रहिए। ये हम जो बेसिक लेवल की प्रिवेंशन है, ये दूसरे लेवल की प्रिवेंशन है कि ये हम पहले तो बाहर में जाए, पहले तो पानी पिए, दूसरा पानी। तीसरा, चाय और कॉफी का, टी और कॉफी का यूज कम कर दीजिए समर के अंदर,
बिल्कुल ही कम कर दीजिए समर के अंदर, ठीक है, जितना हो सके, क्योंकि ये ज़्यादा डिहाइड्रेशन करवाती हैं चाय और कॉफ़ी। अब इसकी जगह पे आप छाछ, लस्सी, बटर मिल्क, ये जो हम चीज़ें कहते हैं, आम पन्ना, ये जो चीज़ें हैं बेसिकली आप यूज़ कीजिए इसका ज़्यादा, जितना हो सकता है, ठीक है। वी कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ लिक्विड बेसिकली, जूस भी ले सकते हैं, कुछ भी है जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पे खड़े हैं, क्या मिल रहा है उस टाइम पे वो यूज़ कीजिए। बट टी एंड कॉफ़ी को अवॉइड कीजिए, जितना हो सके पॉसिबल अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब ये हो गया कॉमन चीज़ें इतनी कि बेसिक हम लोग ये हम तो कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है इसके लिए मुझे गवर्नमेंट कोई कहे कि भाई ये करो, हम तो ये खुद ही कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर कोई करे, ये तो बेसिक चीज़ें हम कर ही सकते हैं इतने, ठीक है। इतनी चीज़ें करेंगे, आई एम श्योर कि आपको ये प्रिवेंशन में आगे कुछ ज़्यादा इतना तकलीफ नहीं आएगा। पहले बात है घर से बाहर ना निकले, मैंने जो आपको कहा, चाय कॉफ़ी का यूज़ कम कर दीजिए, ये कीजिए, ठीक है, अननेसेसरी। दूसरा ये कि आप देखा जो मैंने अभी ट्रैफिक सिग्नल की बात की, ट्राई कीजिए समर के अंदर गाड़ियाँ जो है कार वगैरह कम यूज़ कीजिए। आपको जाना हो कार पूल करके जाइए, आपको जाना हो बस में जाइए, क्योंकि उससे जो टेम्परेचर, जो बसों की एसी की जो गर्मी, गाड़ियों की गर्मी जो है वो आती तो रोड पे है, अल्टीमेटली हम ही सफ़र होते हैं। थोड़ी देर का जो है कहते हैं अच्छा में लगा और उसके बाद नहीं लगा हमें अच्छा, ठीक है, अल्टीमेटली। तो ट्राई कीजिए कि कार पूल कीजिए, बस में जाइए, लोकल मेट्रो में जाइए, जहाँ पे आप जिस सिटी में जो भी चीज़ अवेलेबल है उसके हिसाब से जाइए, कम व्हीकल यूज़ कीजिए। इस तरह से है कि उसका जो एसी का भी जो है अल्टीमेटली बाहर ही आता है, ठीक है, और गाड़ी की गर्मी होती है वो भी बाहर आती है, बाहर बाकी लोग खड़े होते हैं, हम जैसे उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। तो बात तो वही हुई कि आप, ठीक है, 5 आधे घंटे के लिए अच्छे लोग, कुछ लोग एसी में बैठे हैं और फिर बाद में करते हैं। अब एक और एसी के बारे में मैं बात निकले में बता देता हूँ। घर में आप यूज़ कर रहे हैं या ऑफिस में आप एसी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर सेट कीजिए 26 से 27 के बीच में, 26 टू 27 टेम्परेचर आप उसको सेट करना है, न कि इनिशियली जो डायरेक्टली हम रूम के अंदर एंटर होता है 16 पे चला जाता है, या 24 पे या 25 22 20 पे चला जाता है, 18 पे चला जाता है, वो नहीं करना है। हमें क्या चाहिए, कंफर्ट इंडेक्स चाहिए, कंफर्ट चाहिए, ठीक है, इतना ज़्यादा ठंड नहीं चाहिए। ठंड है तो आपको जाओ ठंडी जगह पे, किसी बर्फ वगैरह जगह पे जाओ। हमें ठंड नहीं चाहिए, हमें कंफर्ट रूम में रहना है, आराम से रहना है, थोड़ा सा नॉर्मली का काम हो सके, और कंफर्ट आपको 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर पे मिल जाएगा। अब इससे क्या होगा, जो एसी जो जनरेट कर रहा है हीट बाहर के साइड को कम कर रहा है। लेट्स से अभी मेरा जो घर है उसके सामने मेरे पास लेट्स से 2 एसी 4 एसी जो भी लगे हुए हैं, और उसके सामने किसी और का घर है, मेरे एसी की जो गर्म जो है एयर, वो जो हॉट एयर जो है वो सामने वाले के घर के अंदर जा रही है, और सामने वाले घर के अंदर भी एसी लगे हुए हैं तो उसकी बाहर आ रही है, मेरे घर के अंदर आ रही है। अब आपने वो देखा होगा घरों के फ्लैट्स के अंदर जो स्पेस दो घरों के बीच में बहुत ही कम है, तो ये थोड़ा सा पॉलिसी लेवल का ये होना चाहिए, बिटवीन 2 फ्लैट्स और बिटवीन 2 बिल्डिंग्स देयर शुड बी गुड स्पेस, इनफ स्पेस फॉर वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन। वो हम सोचते नहीं है, जहाँ पे जगह मेरी 6-7 फीट की भी नहीं होती है, आपके घर की गर्म हवा मेरे घर आ गई, मेरे घर की गर्म हवा आपके घर चली गई, बस बात बराबर हो गई। तो ये थोड़ा सा हमें इस लाइन पे भी सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं इस तरह से कि एसी का यूज़ करना है कम से कम, जितना हो सके। पहली बात तो जितना हो सके अवॉइड करें। अब मैं आपको इसमें एक और रिवर्स डायरेक्शन में बात बता रहा हूँ, ठीक है। बाहर गर्मी में जा रहे हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, अंदर एसी में रहते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है। आपको ठंड लगेगी, एसी के अंदर ठंडा होगा, आप वॉशरूम ज़्यादा चाहोगे, ठीक है, कूल टेम्परेचर में जो है थोड़ा सा ठंड लगेगा, वॉशरूम का जो पानी है वो सारा निकल गया, सो डिहाइड्रेशन हो गया। सो ज़्यादा जो ठंडी है वो भी अच्छी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं है। आपको एक बीच का लेवल मेंटेन करना है, जो आपको मैं कह रहा हूँ 26 टू 27 जो है आइडियल टेम्परेचर है, जिसपे हम लोग सब लोग ठीक रह पाएंगे।
मैंने आपको जो बात की है ये एसी वाले, ज्यादा एसी में आप रहेंगे, ठंड में ज्यादा रहेंगे, उससे एक और प्रॉब्लम हो सकता है हमारी हेल्थ पे, हमारी जो एडाप्टिव कैपेसिटी है, कोपिंग कैपेसिटी अब कम हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? जैसे जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा हमारा कैपेसिटी का, कि मैं जो है घर के अंदर जब एसी नहीं था 20 साल पहले 30 साल पहले, लोग तो भी रहते थे ना, अभी क्यों इतना सबके पास एसी, गाड़ियां ऐसी है वो, मैं घर के अंदर एसी चलाता हूँ, घर से निकला गाड़ी के अंदर भी एसी है, चलाया, ऑफिस आया ऑफिस के अंदर भी एसी है, तो मुझे कहाँ एनवायरमेंट मिला? फिर आप घर गया वापस एसी चलाया, तो मैं सारा दिन 24 आवर्स साइकिल में एसी चल रहा है, और एसी मेरा डिहाइड्रेशन भी कर रहा है, मेरे हेल्थ पे भी इफेक्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये समझ में नहीं आता। हमें तो ये दिखाना है कि मेरे पास एसी लगा हुआ है हर के अंदर, ठीक है, वो चीज़ है, मैं कंफर्टेबल एनवायरमेंट हूँ। अब ये थोड़ा सा हमें यूज करना होगा, किसको, जिसको क्या कहते हैं, प्रॉपर वे से एसी को यूज करना है, एप्रोप्रिएटली यूज ऑफ एसी एंड अदर कंडीशनर, जो भी आप उसको कहो, फैन वगैरह जो भी कहो। लेट्स से कोई लोग एसी नहीं, जिसके घर में एसी नहीं है, फैन, ठीक है, तो वो क्या करें, साइड वॉल जो है, साइड वॉल पे एक्स्ट्रा फैन लगा दें घर के अंदर, फैन 1000-1200 रुपये का आ जाएगा, साइड वॉल पे एक एक्स्ट्रा फैन लगा, जो घर के जो विंडोज वगैरह हैं उस पे वो क्या करें, कर्टेन लगा दें, तो थोड़ा सा गर्म यानी पास हवा। तो ये जो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हम घर के अंदर भी कर सकते हैं। हर कोई आदमी एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, हर कोई आदमी जो है वो, आप सबके लिए हमें जो है बेसिक्स यानी सोचना चाहिए सबके लिए। हर कोई आदमी जो ट्रांसपोर्ट में, कार में नहीं जा सकता, बस में नहीं जा सकता, जो है कुछ पैदल भी चलेगा। अब आप सोचिए कि जो ट्रैफिक सिग्नल पे पुलिस वाला खड़ा है, उसकी क्या हालत होगी, ट्रैफिक मैन जो ट्रैफिक पुलिस, उसकी सोचिए आप मुझे, कोई भी बंदा मुझे आधा घंटा खड़ा होकर दिखा दे, आई सैल्यूट टू दिस पर्सन जो ये काम कर रहे हैं, पुलिस वाले या कुछ भी है जो गर्मी में, तो डायरेक्टली जो अफेक्ट होते हैं पर्सन सन से, वो ये जो डायरेक्टली सन में काम करते हैं, जो लेबरर्स हैं, ठीक है, मजदूर हैं जो बिल्डिंग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं, आपको हमें थोड़ा उस लाइन पे सोचना होगा, और ये कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो हम लोग हमें यूज करना चाहिए। ये मेरा आपको थैंक यू सो मच सर। अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, बस कोई छोटा सा टेक होम मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए आप देना चाहेंगे? टेक होम मैसेज जो मैंने कहा आपको, हाँ, हाइड्रेशन स्टेटस, अपना जो बॉडी के अंदर पानी कितना है उसका स्टेटस देखें आप पहले, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं घर के अंदर भी, एज ए नॉर्मल, बाहर भी कैसे, जैसे इंडिविजुअल जो है, जो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ हाइड्रेशन स्टेटस, ठीक है, कि आपको प्यास कितनी लगती है, नंबर 1, यानी थ्रस्ट लेवल कितना है आपका, रिपीटेडली लग रहा है क्या है, तो पानी पीते जाइए। दूसरा, वॉशरूम कितनी बार जाते हैं, ठीक है, आप किसी फीमेल से पूछिए, वो हार्डली दिन में 1-2 बार जाते होंगे, क्योंकि वो पानी कम पीती है, ठीक है, घर के अंदर इतना काम होता है, या पानी कम पी, या बाहर भी है कहीं पे पानी कम पीना है, तो वो चीज। तीसरा जो है कलर ऑफ यूरिन, उसका क्या है, अगर डार्क कलर है यूरिन का, डार्क येलो कलर है यूरिन का, तो मीन्स पर्सन इज सीवियरली डिहाइड्रेटेड, उसको पानी की ज्यादा जरूरत है। हम कहते हैं डार्क यूरिन कलर जो है वो जॉन्डिस में होता है, पीलिया होता है जो उसके अंदर होता है। अब गर्मी के अंदर आप ये देखोगे सबका डार्क यूरिन कलर आएगा, तो पूरे यानी सारे लोगों को पीलिया हो गया क्या? ऐसा नहीं है, वो पानी का लेवल ही नहीं है उसके अंदर, डिहाइड्रेशन है, पानी पिया ही नहीं है। तो मेरा है कि पहले ये आप जो टेक होम मैसेज में अपना हाइड्रेशन स्टेटस चेक करो कितना है। दूसरा जो मैंने आपको बताया मोबाइल की वजह से जो बताया, इसके अंदर जो टेम्परेचर आता है उसको नज़र में रख के आप 37-38 पे आप ये डिसाइड कर लो कि मुझे 8 गिलास पानी पीना है। अब एक टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस राइज हुआ, 39 हो गया,
तो आप क्या करोगे, एक 1 ग्लास ऐड करोगे उसके अंदर, 9 हो गया. You have to take 9 glass of water. If temperature increases further, let's say 40, you have to take 1 more glass. तो ये जो है टेम्परेचर लेट से 42 तक भी जाता है, 43 तक भी जाता है. तो आपको क्या करना है, उसके अंदर 3-4 लेवल गिलास बढ़ाना है. तो आपको यूं समझना चाहिए 2 to 3 लीटर्स पर डे पानी पीना है मिनिमम. अगर आप गर्मी में जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो आपको एडिशनल साथ में पानी रखना है, बॉटल साथ में रखना है और ड्रिंक करते रहना है एवरी आवर. सो डिहाइड्रेशन को नहीं होने देना है. ठीक है. तीसरा जो है, यूज अम्ब्रेला एंड कैप वाइल गोइंग आउटसाइड. चौथा जो मेरा पॉइंट है वो आप उसको अवॉइड करो जाने से बिटवीन 12 to 4. जाओ नहीं, अननेसेसरी घर से नहीं निकलना है, ऑफिस में नहीं निकलना है. और पांचवा और लास्ट पॉइंट है, यूज करो इनको एसी को, फैन को प्रॉपरली. 26-27 पे या साइड वॉल पे एसी लगा लो आप. ठीक है. या तो फिर आप कर्टन्स वगैरह ये यूज करो. ये कॉमनली हम बच सकते हैं इससे. तो इससे ये जो मेरा मैसेज है सबके. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देने के लिए. आई होप कि हम लोग जल्दी ही कोई दूसरा सेशन भी साथ में करेंगे. थैंक यू. नमस्कार. थैंक यू.